ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا G20 سربراہ اجلاس سے خطاب کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں بھارت کی دین کو کیا اجاگر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے روم میں امریکی وزیر خارجہ سے کی ملاقات۔ ملک میں اب تک لگائے گئے ہیں 1 ارب 6 کروڑ اور 18 لاکھ کووڈ مخالف ٹیکے، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 146ویں سالگرہ پر قوم کر رہی ہے خراج عقیدت پیش۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں بھارت کی دین کو اجاگر کیا ہے اور ایک کرۂ ارض ایک صحت کے بھارت کے نظریے کے بارے میں بات کی۔ نریندر مودی نے روم میں کل G20 کے پہلے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اگلے سال کے آخر تک 5 ارب ٹیکے تیار کر سکے گا۔ وزیر اعظم نے حفظان صحت کے شعبے میں اختراع کو بڑھاوا دینے، لچکدار عالمی سپلائی نظام اور انسانی بہبود کے لیے تکنیک کو بروئے کار لانے کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ G20 سربراہ میٹنگ کے موقع پر نریندر مودی نے کئی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ آج G20 سربراہ میٹنگ کا دوسرا اور آخری دن ہے۔ اس میں آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحولیات اور پائیدار ترقی کے موضوع پر 2 الگ الگ اجلاس ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے G20 سربراہ میٹنگ کے موقع پر روم میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ایک ٹویٹ میں جے شنکر نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی بات چیت کافی اچھی رہی اور طرفین کے دونوں ملکوں کے درمیان ساجھیداری سے متعلق کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک لگ بھگ 106 کروڑ 18 لاکھ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 68 لاکھ سے زائد ٹیکے لگائے گئے۔ اس دوران کووڈ کے 12,830 نئے معاملات سامنے آئے۔ ملک میں فی الحال 1,59,272 مریض زیر علاج ہیں۔ اب کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 98.20% ہو گئی ہے۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک تقریباً 1 کروڑ 12 لاکھ ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں، اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 13 کروڑ سے زائد ٹیکے دستیاب ہیں جو ابھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت مرکزی سرکار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے مفت فراہم کر کے ان کی معاونت کرتی رہی ہے۔ مرکزی سرکار پورے ملک میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی مہم کے عمل میں تیزی لانے اور اس کا دائرہ بڑھانے کی پابند ہے۔ جدید بھارت کو متحد کرنے والے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے 146ویں یوم پیدائش پر آج خراج پیش کیا گیا۔ یہ دن راشٹر ایکتا دیوس یعنی اتحاد کے قومی دن کے طور منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے قومی راجدھانی میں پٹیل چوک پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ مرد آہن سردار پٹیل کی جینتی پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں نریندر مودی نے کہا کہ سردار پٹیل کی تحریک اور ترغیب کی بدولت بھارت ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بن سکا ہے، خواہ یہ داخلی ہوں یا خارجی۔ دیش بھر میں ایکتا کا سندیش لے کر آگے بڑھ رہے ہمارے ارجاوان ساتھی بھارت کی اکھنڈتا کے پرتی اکھنڈ بھاو کے پرتیک ہے۔ یہ بھاونا ہم دیش کے کونے کونے میں ہو رہی راشٹریہ ایکتا پریڈ میں، اسٹیچو آف یونٹی پر ہو رہے آیوجنوں میں بھلی بھانتی دیکھ رہے ہیں۔ ساتھیوں، بھارت صرف ایک بھوگولک اکائی نہیں ہے، بلکہ آدرشوں، संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گجرات میں کیوڈیا کے مقام پر مجسمہ اتحاد پر راشٹر ایکتا دیوس تقریب میں ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اطلاعات نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے سردار پٹیل کی جینتی پر انہیں خراج پیش کیا اور راشٹر ایکتا دیوس پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی سالگرہ پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں قومی یکجہتی کا مظہر، ایک بہترین منتظم اور عوام کا ایک قابل اعتماد رہنما قرار دیا۔ ایل جی نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جو قوم اور ملک کے عوام کے لیے کام کیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने इंतजामी सेक्रेटरियों और सिविल सेक्रेटरीट के अहदेदारों को हल्फ यकजहती दिलाया। हल्फ यकजहती की तकरीबात डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और यूटी के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों के दफातर में मुनक्किद हुई। प्रदेश कांग्रेस ने मुल्क की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनकी 37वीं बरसी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। पार्टी ने मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उनकी सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। खातून आहन इंदिरा गांधी को अकीदत के फूल निछावर करते हुए प्रदेश कांग्रेस सदर जीएम मीर ने कहा कि मौसूफ आम लोगों की रहनुमा थी जिसने मुल्क के लिए अपनी जान तक निछावर की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भारत की कसीर जहती तरक्की की बुनियाद रखी है। जीएम मीर और दीगर पार्टी लीडरों ने मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी शानदार खराज अकीदत पेश किया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज राष्ट्रीय एकता दिवस का एहतमाम किया गया, जिसके तहत फोर्स ने रन फॉर पीस का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी जावेद मुजतबा गिलानी ने उम्र के मुख्तलिफ जुमरों के लोगों को झंडी दिखाकर इस दौड़ के लिए रवाना किया। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने इस मौके पर खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की, जिन्होंने दौड़ के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की। एकता दिवस के सिलसिले में मुनक्किद की गई इस दौड़ में सैकड़ों अफराद बशमूल स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में बीजेपी के कश्मीर यूनिट ने भी रन फॉर पीस का एहतमाम किया। इस दौड़ का एहतमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया गया था। यह दौड़ नेहरू पार्क से शुरू होकर एसकेआईसी में इख्तिताम पजीर हुई और इसमें दर्जनों पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर डल झील के अंदर एक शिकारा रैली का भी एहतमाम किया गया, जिसको नाज़िम सियाहत कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शिकारा रैली में 50 शिकारों ने हिस्सा लिया और इस दौरान शिकारों के एक साथ तैरने के दिलकश मनाजिर से लोग महजूज हुए। इस दौरान सियाहत महकमे के कई दीगर हुकाम भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त गूनागू मसाइल और मुश्किलात से दोचार हैं और यूटी में बकौल उनके तामीर तरक्की का कहीं नामो निशान नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर पर जम्मू और शिमाली कश्मीर से आए पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। 6 दहाई कबल तामीर की गई 2 सुरंगों पर मुश्तमिल 2.5 किलोमीटर लंबी जवाहर टनल की जदीदकारी पर वसी पैमाने पर काम शुरू किया गया है और इसे सियाहती मरकज के तौर उभारा जाएगा। इन बातों का इजहार बीकन के चीफ इंजीनियर IK जकी ने जवाहर टनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में कंपनी की तरफ से शुरू किए गए काम का जायजा लेने के दौरान किया। उनके हमरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बीकन के माहिरीन और अफसरान भी थे। उन्होंने कहा कि टनल के अंदर मॉनिटरिंग, फायर फाइटिंग और धुआं खारिज करने के लिए जदीद निजाम मुतारिफ किया जाएगा और इस पर करीब 80 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। दूरदर्शन के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, ड्रेनेज है तो सीपेज का इशू है इसके अंदर, क्योंकि 1997 में लास्ट इसमें रिपेयर हुआ था और इसमें सीपेज का एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद में जो पेमेंट क्वालिटी है इसका, जो सरफेस है रोड का, उसको हम दोबारा एक नया सरफेस बना रहे हैं और इसके साथ में इसके पूरे इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट को चेंज कर रहे हैं। ये वो जो पुराना इक्विपमेंट है हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अभी ज़रूरत है कि एक नया जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको लाने का, और इसके साथ में इसमें जो है सेफ्टी फीचर्स और हम ऐड कर रहे हैं। बांडीपोरा जिले के हाजन बानियारी इलाके में कल शाम उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब एक 30 साला नौजवान अब्दुल मजीद डार, जो एक निजी कंपनी के साथ झीले बुलर में बतौर मजदूर काम कर रहा था, शदीद जख्मी हुआ। मज़कूर शख्स को अगर इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ज़राए ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि यह शख्स गाड़ी से लोहे की पाइप्स को अनलोड कर रहा था, जिस दौरान वो शदीद जख्मी हुआ। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बायो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने आज इंडियन कैंसर सोसाइटी के इश्तराक से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जानकारी पैदा करने की खातिर एक ऑनलाइन वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस वर्कशॉप का उन्वान था ब्रेस्ट कैंसर केयर, स्क्रीन फॉर अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। वर्कशॉप में मुल्क भर से 300 शरका शामिल हुए। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की पेशगी तशखीस के लिए इस मर्ज से मुतल्लिक जानकारी फैलाना सबसे अहम चीज है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार परेश रावल ने कल श्रीनगर में एक थिएटर इन एजुकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात मनाने के एक हिस्से के तौर
किया गया। इस हवाले से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार, कल्चर और सकाफत महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज, कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी राहुल पांडे और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर दिनेश्वर खन्ना के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए। गुरमत टकसाल नामी सिख तंजीम ने आज 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और मुतालबा किया कि सिखों के खिलाफ इस साल होने वाले मजालिम की तहकीकात करके मुलविसीन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तंजीम ने अपने बयान में कहा है कि 37 साल गुजरने के बावजूद मुतासिरीन को इंसाफ फराहम नहीं हुआ है। महकमे जंगलात ने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट्स की सरबराही में आज शंकराचार्य पहाड़ी पर मौजूद जंगल में सफाई सुथराई की एक मुहिम चलाई ताकि इस इलाके को प्लास्टिक और दीगर किस्म के फुजले से पाक किया जा सके। इस सफाई मुहिम में महकमे जंगलात के अफसरान और एहलकारों के अलावा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ऐसे प्रोग्रामों के मुस्तकबिल में भी चलाए जाने पर जोर दिया गया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज संडे फॉर श्रीनगर पहल के तहत छानपुरा, लाल बाजार, बाबडेम और मुलिका इलाकों में एक सफाई मुहिम चलाई गई। एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर ACT, जो कि मुनाफा से आजाद एक तंजीम है, ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और मिशन यूथ के इश्तराक से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में उर्दू ड्रामा झील बुला रही है स्टेज किया। ड्रामे को मुश्ताक अली अहमद खान ने डायरेक्ट किया है जबकि अली मोहम्मद लोन ने यह ड्रामा तहरीर किया है। सनत नगर रावलपुरा के रहने वाले शफात अहमद काऊसा कल यानी 30 अक्टूबर को इंतकाल कर गए। मरहुमा की फातिहा ख्वानी 2 नवंबर बरोज मंगल उनके आबाई मकबरा वाका पुलिस स्टेशन नौहट्टा में सुबह 11 बजे अंजाम दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के रुकन पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन और दीगर कई लीडरान ने शिमाली कश्मीर के बुलंद पाए वली कामिल हजरत सैयद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के पेश नज़र अकीदतमंदों के लिए बिजली, पीने का साफ पानी, सेहत व सफाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर जरूरी खिदमात दस्तियाब रखने की अपील की है। फौज और आवाम के दरमियान तालमेल को उजागर करने की गरज से हर साल मनाया जाने वाला मसिल मेला रवां बरस 30 अक्टूबर को पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस साल के मसिल मेले की खास बात मसिल के 9 देहात को मिलाने की गरज से GREF की जानिब से तामीर किया जाने वाला 150 फुट लंबा पुल था। इस पुल को कैप्टन आशुतोष पुल के नाम से मौसूम किया गया है। मेले के दौरान स्मृति सितल को मराठा स्मृति सितल के बतौर उनकी 32 मराठा लाए एहलकारों को वक्फ किया गया जिन्होंने इस इलाके में अपने फराइज अंजाम देते हुए जानों का नजराना पेश किया था। वादी में जैसा कि रोज बरोज सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, वहीं श्रीनगर के संडे मार्केट में गर्म मलबूसात की खरीदारी में जोश खरोश देखा जा रहा है। आज एक तरफ संडे मार्केट में लोगों की खास तादाद खरीदारी में मसरूफ रही, वहीं हिफाजती एहलकार भी क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग करते नजर आए। हमारी कैमरा टीम ने श्रीनगर के लाल चौक में घंटाघर के नजदीक इस सिलसिले में चंद मनाजिर अक्सबंद किए। क्रिकेट। आज दुबई में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। यह मैच अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे शुरू हो रहा है। वाज़ेह रहे भारत और न्यूजीलैंड अपने पहले खेले गए मैचों में पाकिस्तान से हारे थे और अब भारत और न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए सख्त मेहनत और बेहतर खेल खेलना होगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में फौज ने विलगाम हाफुर्डा में कई खेल सरगर्मियों का इनेकाद किया। इस मौके पर जारी यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया जिसका बुनियादी मकसद नौजवानों को खेल सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के साथ साथ स्पोर्ट्स में स्पिरिट और भाईचारे और उनके अंदर छुपी सलाहियत को निखारना था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने फातह और रनर अप टीमों को मुबारकबाद पेश की। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।